IIM अहमदाबाद, बैंगलोर, कैलकाटा, ISB, FMS, आप अगर इन कैटेगरी ऑफ बी स्कूल से ग्रेजुएट होते हो, व्हाट इज द काइंड ऑफ सैलरी यू कैन एक्सपेक्ट 5 years डाउन द लाइन? यूजुअली आपको इन कॉलेजेस का एवरेज पैकेज पता होता है, दैट इज अराउंड 35 lakhs. However, that is campus placement. What you will be earning 5 years down the line, that is also important to know, because MBA में compared to a lot of other profession, salary growth काफी fast होती है. However, 5 years later, salary for students from the same B school can vary a lot depending on which domain they joined, which company they joined, what kind of performance they have had. So it's difficult to pinpoint to a single number. But in this video, मैं discuss करूँगा ऐसे 5 real life stories, उनके career trajectories, at what salary they started, at what salary they are currently at, so that you understand and you get a glimpse of what can be your career trajectory. And इस वीडियो में मैं कंपनीज के बारे में बताऊंगा at different designation level किस टाइप की सैलरीज ऑफर की जाती है. However, this is confidential data, and that's why I will keep all the 5 people confidential as well. I will not reveal their names because ideally this data should not be shared with someone outside. So let's start this. So start करते हैं फर्स्ट प्रोफाइल से. IIM बैंगलोर, बैच ऑफ 2022, जॉइंट LEK कंसल्टिंग फ्रॉम कैंपस. LEK कंसल्टिंग का मैं बता देता हूँ, इट्स द हाईएस्ट पेइंग कंसल्टिंग फर्म ऑन एनी IIM कैंपस, स्पेशली बिकॉज इट नीड्स वर्क एक्सपीरियंस. रेस्ट ऑफ द कंसल्टिंग फर्म्स डोंट नीड वर्क एक्सपीरियंस टू जॉइन. हाउएवर LEK कंसल्टिंग नीड्स वर्क एक्सपीरियंस एंड वो थोड़े सीनियर लेवल पे लेती है. सो इट्स ऑफर्स द हाईएस्ट स्टार्टिंग सैलरी. सो अगर आप देखोगे, फिक्स सैलरी थी इसकी 40 lakhs was the fixed salary, 5 lakh was the joining bonus and 6 lakh variable, which means and कुछ प्रॉफिट शेयरिंग भी थी. सो द अर्निंग पोटेंशियल वाज अराउंड 55 lakhs इन द फर्स्ट ईयर. उसमें से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अराउंड 50 lakhs इज अ रीजनेबल नंबर टू टारगेट. अगर 40 लाख फिक्स सैलरी है, उसमें से यू कैन एक्सपेक्ट आई थिंक 2.5 to 3 लाख कुछ इन हैंड आता होगा, डिपेंडिंग ऑन किस तरीके के इन्वेस्टमेंट्स किए हैं फॉर टैक्स सेविंग. बट 2.5 to 3 लाख वो आता होगा इन हैंड एवरी मंथ. 5 lakh ज्वाइनिंग बोनस इज समथिंग यू विल डेफिनेटली गेट. 5 लाख 30% टैक्स डिडक्ट हो जाएगा उसमें, तो 3.5 लाख उसमें से मिल जाएगा फॉर द ईयर. एंड 6 वेरिएबल में, लेट्स नॉट टॉक अबाउट वेरिएबल, बट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो उस टाइप से, आप एस्टिमेट कर सकते हो. मे बी इवन इफ यू कंसिडर 50% और 60% ऑफ दैट वेरिएबल बोनस, तो आप एस्टिमेट कर सकते हो अराउंड ये 50 लाख इनका टोटल अर्निंग पोटेंशियल होता है, उसमें से आप टैक्स डिडक्ट कर लो. सो दैट वाज फर्स्ट ईयर. And next year में, when they join as senior consultants, just remember this designation as well, they join as senior consultants. Second year, they do not get promotion ideally, but 45 becomes their base salary. So 45 lakh is the fixed salary that they get. 8 lakhs variable होता है उसमें. So याद है year 1 में it was 40 lakh fixed plus a 5 lakh of joining bonus. So उस joining bonus को ही मान लो आप fixed salary में ले गए हो, तो 45 lakh around हो जाते हैं. And 8 lakh variable bonus, some profit sharing again. Again, the earning potential is very close to the first year number only, around 55 lakh ही होता है. It's just that जो आपका joining bonus था वो आपका fixed component में आ गया है, इसलिए per month you start earning a little bit more. Maybe now you will be earning very close to 3 lakh depending again on your tax investments. Now this was second year. Up third year में, and remember this guy told me that the salaries have increased after his batch. So probably people who join LEK will be starting at a salary much higher than 40 lakh fixed. So it's even better than that. So third year में the salary has become around 54 lakh, or you can say it's almost 3.5 to 4 years now. Okay, 3.5 to 4 years, the salary has almost become 54 lakh fixed salary and around 15 to 20 variable salary. So this is the kind of number you have. So on paper you are usually earning like 70, above 70 lakh. However, realistically आप बोल सकते हो 60 to 65 lakh आता है in hand नहीं exactly, but 60 to 65 lakh reasonable number है earning potential के लिए. इन हैंड अगर मैं बात करूँ 54 लाख में, अगर मैं बात करूँ अप्रोक्सीमेटली 3 to 3.5 लाख का नंबर आप टारगेट कर सकते हो फॉर दिस काइंड ऑफ अ फिक्स सैलरी. सो इन द नेक्स्ट 2 years द पर्सन इज एक्सपेक्टिंग अ प्रमोशन एज वेल. सो अराउंड 65 to 70 लाख ही इज एक्सपेक्टिंग. मतलब 5 years आफ्टर IIM अहमदाबाद इसकी फिक्स सैलरी अराउंड 65 to 70 लाख हो जाएगी इन LEK कंसल्टिंग. इसके बाद नेक्स्ट प्रोफाइल में चलते हैं. दिस इज अ कंसल्टिंग फर्म इन दुबई. आई विल नॉट नेम दिस फॉर पर्टिकुलर फर्म, बट दिस इज अ कंसल्टिंग फर्म इन दुबई. IIM Bangalore again, batch of 2020 this time. So exactly they have completed 5 years in the firm. So यहाँ पर when they joined, and remember whatever number I am speaking, it's from the past 2022, 2020. अभी salary numbers would have increased only. It would not have decreased. However, this will give you definitely a rough idea about what you can expect in these firms. So 2020 में इन्होंने join किया as associate. उनका एक level होता है associate 2 level पे. तब उनका salary in दुबई था
$75,000, सो विच इज़ अराउंड 65 लाख उनका फिक्स सैलरी था। कुछ बोनसेस रहते हैं अगेन विच इज़ अराउंड $10,000 बोनस थे, विच इज़ अराउंड अगेन 8 लाख रुपीज़। एंड देयर इज एन अलाउंस एज वेल, दैट इज़ हाउसिंग अलाउंस आपको मिलता है 75,000 दिरहम का, विच इज़ 15 लाख रुपीज़। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 15 लाख अलाउंस में हटा दो, दैट इज़ मतलब आपको हाउसिंग में बेसिकली यू डोंट हैव टू स्पेंड एनीथिंग। 15 लाख्स में यू कैन फाइंड अ हाउस एंड यू कैन पे योर रेंट। तो हो सकता है 15 lakhs एंड 65 lakhs वॉज योर फिक्स्ड सैलरी। एंड याद रखना दुबई में द गुड थिंग इज देर इज नो टैक्स एज वेल, 5% मैक्सिमम आप सब कुछ मिला के पे करते हो। सो मोस्ट ऑफ इट इज एक्चुअली इन हैंड। सो अगर आप 65 lakhs अर्न कर रहे हो, यू कैन एक्सपेक्ट कि 65 lakhs फिक्स्ड अर्न कर रहे हो, तो यू कैन एक्सपेक्ट 5 लाख अराउंड या फिर ऑलमोस्ट 5 से ज़्यादा ही आपको इन हैंड मिल जाएगा। एंड देन 8 lakhs आपका वेरिएबल बोनस भी है विच यू कैन गेट। एक्चुअली 8 लाख से ज़्यादा होता है बट रीजनेबल नंबर इज 8 lakhs, $10,000, उससे ज़्यादा भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द परफॉर्मेंस। उसके बाद 12 months लेटर दे गॉट प्रमोटेड टू A3 लेवल, दैट इज एसोसिएट 3 लेवल। जब उनकी सैलरी थी अराउंड $80,000, 70 lakhs अराउंड सैलरी थी। एंड अगेन बोनस काइंड ऑफ सेम था, 8 lakhs ही आप ले लो, एंड हाउसिंग अलायंस भी सेम था। सो ये 5 lakhs इट इंक्रीज फॉर द नेक्स्ट ईयर। उसके बाद नेक्स्ट ईयर दे गॉट प्रमोटेड, मतलब एसोसिएट लेवल से दे बिकेम सीनियर एसोसिएट। सीनियर एसोसिएट में भी लेवल्स होते हैं, सो दे बिकेम सीनियर एसोसिएट लेवल 1। तो वहाँ पर सैलरी टेक्स अ जंप, इट्स डेफिनेटली लाइक $130,000 या $120,000 उनकी सैलरी होती है। 1.1 crore इज द काइंड ऑफ सैलरी दैट यू कैन एक्सपेक्ट इन SA1। सो 1.1 crore उनकी सैलरी थी। बोनस भी इंक्रीज कर जाती है कंसिडरेबली एट दिस स्टेज, $20,000 to $25,000 आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, विच इज़ अराउंड 17 to 20 lakhs I believe, $20,000 to $25,000। एंड हाउसिंग अलायंस भी अब नाउ इंक्रीज हो जाती है। Now you will get a housing allowance of almost 20 lakhs if you are a single person। अगर आप married हो या फिर आपके children है, then the housing allowance can increase as well depending on कितने family members है। 20 to 30 lakh का आपको housing allowance मिल जाता है। So and the salary becomes 1.1 CR and bonus लेके that again 17 to 20 lakhs का bonus ले सकते हो इसमें। And again because fixed salary will be very very high, you can obviously imagine it will be almost 9 lakh, 8 to 9 lakh के बीच में कुछ आपकी सैलरी नंबर, फिक्स सैलरी नंबर रहेगी। SA2, 12 months later he became SA2 as well, and his salary is just $10,000 increase हो जाती है, तो around 1.2 crore and 17 to 20 lakh again bonus ले सकते हो, and same housing allowance same होता है। and then SA3 होता है, दैट इज 1.3 CR की सैलरी होती है, एंड 17 लाख अनदर विच इज सेम 17-20 लाख बोनस काइंड ऑफ सेम होता है, वेरिएबल बोनस, हाउसिंग अलायंस भी अगेन सेम। सो दिस इज नॉट एक्जैक्टली अ प्रमोशन, हाउएवर दिस इज वन, यू आर गोइंग वन लेवल अबव, designation is not changing, you are still a senior associate। so that is how your trajectory might look like for the 5 years. Later probably in another year or year and a half he is expecting to be promoted to a manager where his salary will be around 1.5 CR, that's the fixed salary। so ये है for this particular firm, this is the salary range across the 5 years। आप associate level से शुरू होते हो, उसके बाद senior associate में जाते हो, where already your salary is around 1.3 CR, 1.2 CR आप average ले लो senior associate की salary, and उसके बाद जाके M1 या फिर manager level पे it becomes almost 1.5 CR। but this is obviously in Dubai, you are spending in Dubai in dirham obviously, so यहाँ पर that has to be considered। but आपको housing allowance भी on top of this मिल रहा है, so you're not spending anything on housing। but yes, अगर if you have a family, so you might have to spend on education and healthcare and everything has to be at Dubai's cost। next आ जाते हैं एक marketing role की तरफ in one of the most sought after marketing firm, and that is HUL। so this is ISB batch of 2021, joined in 2021 with a starting salary of 30 lakh। so इनका starting salary होता है 30 lakh। I think this is some, उसके ऊपर कुछ थोड़े bonuses भी रहते हैं above that 30 lakh number, but fixed में I think it is around 26-27। so 26-27 अगर fixed salary है तो आप expect कर सकते हो you will get around 1.8 to 1.9 in hand। तो उस तरीके से आप इन हैंड कंसिडर कर सकते हो। उसके बाद मैं 5 ईयर्स में क्विकली कवर कर लूँगा आप सारे रोल्स को। सो 5 ईयर्स में इनका ऐसा ट्रेनिंग होता है। फर्स्ट ईयर यू जॉइन एज अ मैनेजमेंट ट्रेनी, ऑलमोस्ट 11-12 months यू रिमेन अ मैनेजमेंट ट्रेनी। देन 2 years ऑफ सेल्स यू विल डू, दिस इज अ टिपिकल साइकिल दैट एवरीवन फॉलोज। तो
टू ईयर्स ऑफ सेल्स एंड 2 years ऑफ अकाउंट मैनेजमेंट या फिर कस्टमर मार्केटिंग या फिर उस टाइप के किसी अदर रोल्स में यू विल बी देयर. यूजली ये ट्रेजेक्ट्री होती है. देयर कैन बी एक्सेप्शंस ऑब्वियसली. सो 5 years में दिस इज हाउ इट इज स्प्लिट. First year of management trainee, 2 years of sales, 2 years of account management, and then you get a promotion where you are become a brand manager, where you're handling one typical brand. So 5 years बाद उनमें से एक promotion होती है. So the trajectory of growth of this salary, ये exactly डिटेल नहीं कर सकते. डिपेंड्स ऑन द परफॉर्मेंस एज वेल, बिकॉज एनुअल अप्रेजल के बेसिस पे जितना मिल रहा है, दैट इज द काइंड ऑफ सैलरी यू कैन एक्सपेक्ट. मे बी 10% या फिर उससे थोड़ा कम भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन द मार्केट कंडीशंस एंड द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी. बट इन साइकिल में अगर आप उसके बाद ब्रांड मैनेजर बनते हो, विच दिस पर्टिकुलर पर्सन इज गोइंग टू बिकम इन अ फ्यू मंथ्स, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 50 to 55 लाख, डिपेंडिंग ऑन आप कहाँ थे इन द 5 years, आपकी सैलरी रहेगी 50 to 55 lakhs एज अ ब्रांड मैनेजर 5 years आफ्टर ग्रेजुएटिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर एनी पर्टिकुलर टॉप बी स्कूल. बट ऑल्सो रिमेंबर, मार्केटिंग रोल्स कम विद अमेजिंग वर्क लाइफ बैलेंस, amazing kind of work as well, because a lot of people complain in consulting that they have to spend a lot of time. LEK में चाहे सैलरी थोड़ी ज़्यादा हो compared to say HUL, however the work life as well is very different in LEK consulting as well as HUL. People are very happy, especially my batchmates when I talk to. I haven't discussed about much about their roles and everything, however they are very happy in their role. That is everything that I can tell about HUL at least. And in other marketing firms as well, when I talk to the batchmates, at least it's less hectic compared to consulting, and that's why people are really happy and want to continue in that job. Next we'll cover another consulting firm, and this is one of the big fours, PwC, IIM Calcutta batch of 2020. However, remember, big fours usually थोड़ी कम salary offer करती है compared to other consulting firms like McKinsey, Bain, BCG, LEK या फिर Accenture Strategy. Most of these consulting firms से थोड़ा कम offer करती है across all the big fours, PwC also. So when you join from a top B school, you join as an associate consultant where the salary is 23 lakh approximately. So वहाँ पर अगर आप in hand ले लो तो 23 lakh में you will get around 1.3 to 1.4 kind of in hand salary हो जाती है, depending again on your investments. And post that you work there for around 2 years, and 2 years बाद आप senior consultant बन जाते हो. That is where you have a salary of above 30 lakh. So 2 years में मान लो आप थोड़ी growth होती है, like 26-27 तक जाते हो एज अ एसोसिएट कंसल्टेंट, एंड देन आप सीनियर कंसल्टेंट में स्विच करते हो तो 32-33 तक आपकी सैलरी हो जाती है. दैट हैपन्स आफ्टर 2 years, एंड आप उस रोल में अनदर 2 years रहते हो. अराउंड सैलरी चली जाती है 36-37 लाख तक टिल 4th year. उसके बाद एक और जंप मिलता है, एंड व्हेन यू बिकम अ मैनेजर, सीनियर कंसल्टेंट के बाद फिर 5th year में अराउंड आप एक्सपेक्ट कर सकते हो यू विल बिकम अ मैनेजर, एंड देन योर सैलरी रीचेस अराउंड 42-43 लाख की रेंज में आपकी सैलरी हो जाती है एज अ मैनेजर इन PwC. नेक्स्ट एक फाइनेंस का रोल कवर करता हूँ, एंड दैट इज गोल्डमैन सैक्स का क्वांट रोल. याद रखना, गोल्डमैन सैक्स के अंदर बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ रोल्स होते हैं, एंड दिस इज स्पेसिफिकली फॉर देयर क्वांट रोल. तो वहाँ पर दिस पर्टिकुलर पर्सन इज IIM बैंगलोर बैच ऑफ 2021. तो जब इन्होंने ज्वाइन किया था, द सैलरी वॉज 31 lakhs, द स्टार्टिंग सैलरी वॉज 31 lakh. हावेवर अभी उन्होंने बताया कि सैलरी चेंज हो चुकी है, कंप्लीट स्ट्रक्चर चेंज हो चुका है. अभी सैलरी इज 42 लाख, दैट इज अ फिक्स सैलरी प्लस 8 लाख अनदर वेरिएबल बोनस आल्सो देयर. तो काइंड ऑफ 50 है, बट 42 लाख आप सोच सकते हो विल बी योर स्टार्टिंग सैलरी इफ यू जॉइन गोल्डमैन सैक्स इन द क्वांट रोल टुडे. तो 31 लाख्स अगर मैं बात करूँ तो 31 लाख्स मतलब अराउंड 2 लाख रुपीज़ या 1.8-1.9 लाख रुपीज़ इन हैंड आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इस पर्टिकुलर सैलरी रेंज में. You join as an analyst. So analyst, 2 years you stay an analyst, then you become an associate. 2 years you stay an associate, and then you kind of become the vice president. And यहाँ पर अगर मैं सैलरी की बात करूँ, सैलरी ट्रेजेक्ट्री की बात करूँ, तो 31 लाख से आप स्टार्ट करते हो. अराउंड आप कंसिस्टेंट ग्रोथ ले सकते हो, 14-15% CAGR, 14-15% एवरी ईयर का आप ग्रोथ ले सकते हो. काइंड ऑफ व्हेन यू बिकम एन एसोसिएट, यू कैन एक्सपेक्ट योर सैलरी टू बी इन द रेंज ऑफ आई थिंक 45-50 से आप स्टार्ट करोगे, एंड काइंड ऑफ 50 के ऊपर चले जाते हो, 55 के ऊपर 55 तक ऑलमोस्ट आप एसोसिएट में रीच कर जाते हो सैलरी. देन यू बिकम अ वाइस प्रेसिडेंट एज वेल, एंड इट काइंड ऑफ ऑलमोस्ट डबल 65-70 लाख आपकी सैलरी चली जाती है. सो यहाँ पर मुझे एग्जैक्ट नंबर्स नहीं पता, बट मुझे रेंजेस में पता है ये नंबर्स. सो 65-70 लाख इज वॉट यू कैन एक्सपेक्ट, बट दिस इज फॉर द पर्सन हु हैज ऑलरेडी बीन देयर सिंस अ लॉन्ग टाइम. अगर आपने रिसेंटली ज्वाइन किया था तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी ही थोड़ी ज़्यादा रहेगी, दैट इज अराउंड 42 लाख यू विल स्टार्ट विद, एंड
after 5 years you can expect your salary to be in the range of 75 to 80 lakh अगर आपने हायर बेस पे स्टार्ट किया है. सो याद रखना इन सभी सैलरीज में थोड़ा डिफरेंस हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ अदर एम्प्लॉयज इन द फर्म एज वेल. हो सकता है किसी एक पर्टिकुलर रोल में यू कैन अर्न लेस या फिर यू कैन अर्न मोर एज वेल फॉर द सेम काइंड ऑफ प्रोफाइल और द सेम काइंड ऑफ एक्सपीरियंस एज वेल, एंड इट ऑल डिपेंड्स ऑन द परफॉर्मेंस इन द सेम कंपनी एज वेल. सो इसलिए काफ़ी वेरी कर सकती है डिपेंडिंग ऑन योर परफॉर्मेंस. बट एक और चीज़ याद रखना, यूजली आफ्टर 3-4 years after graduating from a top B school, you're not thinking much about माइनर सैलरी डिफरेंसेस. 10-20 लाख डिफरेंस भी इतनी ज़्यादा सैलरी डिफरेंस नहीं लगती है. रादर वॉट यू आर सीकिंग इज़ गुड वर्क लाइफ, गुड कल्चर, ग्रेट लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़. इसलिए बस ज़्यादा सैलरी जिसमें है उसमें टारगेट करना इट डज नॉट मेक सेंस. रादर वॉट यू शुड बी टारगेटिंग इज़ वेयर यू आर इंटरेस्टेड. दैट इज़ द काइंड ऑफ एम. यूजली इफ यू आर वॉचिंग दिस फ्रॉम अ रेप्यूटेड बी स्कूल या फिर यू आर समवन who will make it to a B school like this and then planning for your career ahead, don't just choose a role depending on what offers more salary. Rather, what you like is much more important because it's a very long career. 5 years bhi nahi, 10 years, 15 years, 20 years you have to stay in the corporate life if you are planning to do your job only. So definitely you have to like the work, otherwise you will start hating. A lot of my friends, despite very high salary in consulting, they just left the job. They joined a startup or some of them switched to product management. The reason was very simple, that they did not enjoy the hustle culture of consulting. Even if it means coming at a lower salary, they switch to such roles. So मैं ऐसे और भी videos बनाता रहूँगा as I collect more information from other people too. So make sure you are subscribed to the channel if you are an MBA aspirant. And अगर आपको ये जानना है कि कंसल्टिंग में लाइफ एग्जैक्टली होती कैसी है, वेदर इट इज़ वेल सूटेड फॉर यू और नॉट, देन उसके लिए भी मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया था. उसको आप स्क्रीन पे देख सकते हो. एंड अगर आप इंटरेस्टेड हो, मैं आपसे वहाँ मिलता हूँ.